Good morning, everyone. Today's learning objective is Introduction to Microbiology. Microorganisms. Here in the picture, we see that bacteria, virus, protozoa, algae, and fungi. So, bacteria, fungi, algae, protozoa, and virus have been around for at least 3000 million years ago. So, we know that bacteria, fungi, and algae, protozoa, virus, they have been so many years, but we don't know. We when we came to know by studying them through microscope, that is why we call it microorganism. Science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the world. By Louis Pasteur. Microbiology is one of the fascinating fields of science. Microorganisms and their activity are the major concerns of the society, both nationally and internationally. The development in biotechnology, genetic engineering, and nanotechnology have placed microbiology in the limelight. So, microbiology, which is a माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा साइंस है, इससे फील्ड ऑफ साइंस है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी इसकी इतनी सारी डेवलपमेंट्स है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी और नैनो टेक्नोलॉजी में भी। Microorganisms provide the model for interdisciplinary research and for studying fundamental life process. There is a growing recognition of microorganisms and the potential in many applied areas like environmental science, agriculture, food and pharmaceutical industry. So from microorganism what we are getting that we apply some fields of the sciences to get a good result. जैसे कि हम माइक्रोऑर्गेनिज्म पे पढ़कर उनके ऊपर जानकारी स्टडी कर कर हम उसके उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर में, फूड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म are becoming increasingly attractive. Some microorganisms are beneficial to us, we cannot live without them. तो ऐसे थोड़े microorganism हैं जिस पे हम dependent हैं, उनके बिना हमारे हमारे लिविंग बॉडी में भी उनका उतना महत्व है. However, microorganisms can be harmful in many ways and bring about undesirable changes. These microorganisms can cause diseases that can make us sick or even kill us. Much more is known today about majority of the invisible world remains unexplored. Microbiology continue to identify new ways that microbes benefit and threaten humans. तो माइक्रोबायोलॉजी से हमें बहुत सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिसीज पैदा करते हैं और हम सिक हो जाते हैं, किलर्स में वो हमें मार भी सकते हैं. बट थोड़े ऐसे जो हमारे humans को benefit करते हैं. Microbiology is the study of living organism of microscopic size which include bacteria, fungi, algae, protozoa and virus. Microbiology is concerned with the form, structure, reproduction, physiology, metabolism, classification of microorganism. So microbiology का मतलब है एक सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो कि हम माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें माइक्रोस्कोपिक साइज में दिखाई देता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गे है, प्रोटोजोआ है, वायरस है. तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, उनकी फॉर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर, उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी मेटाबॉलिज्म, वो कैसे पैदा हो रहे हैं, किस तरह से पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, द रिलेशनशिप टू ईच अदर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप विद लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनकी रिलेशनशिप क्या है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स एनिमल्स पे क्या इफेक्ट है, देयर एबिलिटी टू मेक ए फिजिकल एंड केमिकल, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस एनवायरनमेंट में क्या आ रहे हैं, एंड द रिएक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, वो किस तरह फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स दे रहे हैं एनवायरनमेंट और वो फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट में क्या रिएक्शन हो रहा है. There are many kinds of microorganisms present in the universe. They are broadly classified into following groups. बैक्टीरिया, दे आर यूनिसेलुलर. तो यहाँ पे बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में. बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर मतलब वो एक ही सेल है, बाइसेलुलर मतलब डबल होता है, यूनिसेलुलर एक ही सेल. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सिंपल एसोसिएशन ऑफ सिमिलर सेल्स. तो यहाँ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर सिंपल एसोसिएशन ऑफ सिमिलर सेल्स मतलब एक ही
सेल के सिंपलर फॉर्म में जो सेल्स रहते हैं उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सेल मल्टीप्लिकेशन यूजुअली हैपन बाय बाइनरी फिशन. तो उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह उनकी रिप्रोडक्शन हो रही है? बाइनरी फिजन के द्वारा. एग्जाम्पल एसाक्रिया कोलाई और बैसिलस सबटिलस. फंगी, they are eukaryotic organism which is devoid of chlorophyll. ये एक फंगी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और वो क्लोरोफिल में मतलब फोटोसिंथेसिस हुई फूड पे डिपेंड करता है. दे आर यूजुअली मल्टी सेलर. ये सिंगल सेल नहीं है, ये मल्टी सेलर है. दे रेंज इन साइज एंड शेप फ्रॉम सिंगल celled microscopic yeast to giant multicellular mushrooms and puffball. तो उनके में सिंगल सेल से लेके मल्टी सेल तक कह बताया जा रहा है, जैसे कि मशरूम्स ऑफ पफ बॉल्स. एग्जाम्पल एस्परागिलस नाइगर एंड agaricus agaricus bisporus. प्रोटोजोआ, दे आर यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये भी एक यूनिसेलर, ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. their role in the nature are varied. The best known protozoa causes disease in human beings and animals. तो सबसे इनमें से जो प्रोटोजोआ जो डिसीज कॉजिंग है, जैसे कि ग्यार्डिया लैम्बलिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये एग्जाम्पल्स. algae, they range from unicellular colonial to multicellular form. algae में यूनिसेलर से लेके मल्टीसेलर तक है. इस algae भी क्लोरोफिल डिपेंडेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस जिसमें एंड आर केबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब ऑल algae सेल कंटेन क्लोरोफिल. तो इस algae में क्या है? क्लोरोफिल रहता है और वो फोटोसिंथेसिस बनने की उनमें कैपेबिलिटी होती है. दे आर फाउंड मोस्टली कॉमन इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट एंड डैम्प सॉइल. तो एल्गे कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मिलता है? एक्वाटिक मतलब सी एरिया पे और डैम्प सॉइल पे. एग्जाम्पल्स फायरा एंड क्लाइमोडोमोनस. वायरस इन द study of microbiology, we encounter organisms which may represent the borderline of life. Viruses are the simpler in structure and composition than other living cell. A virus is made up of nucleic acid and protein. तो वायरस में क्या सबसे ज्यादा होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी होती है. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. सो वायरस ऐसी पैरासाइट है कि उसको अपने आप को ढकने के लिए एक आउटर शेल होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स रहता है. वो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास बहुत सारे हथियार रहते हैं. दे ग्रो ओनली विद इन एन अप्रोप्रिएट होस्ट सेल. तो वो कहाँ पे ग्रो हो रहा है? यहाँ होस्ट सेल मतलब क्या कहा जा रहा है? या प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है, उसे होस्ट सेल कहते हैं. तो उसके अंदर वो जाके अच्छी तरह ग्रो होता है. दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड ए होस्ट सेल. जैसे कि एक प्लांट में, एक एनिमल में, एक ह्यूमन में या फिर एक माइक्रोब में जाके वो ग्रो हो सकता है. उसके बाहर जब निकल जाता है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसकी डेथ हो जाती है. एग्जाम्पल है HIV, रेबीज वायरस. Pyrons are infectious agent composed entirely of protein material. Citrofeldet Jakob disease is one of the human pyron disease. तो पायरन्स जो है वो भी एक इन्फेक्शियस है. वो पूरी तरह प्रोटीन मटेरियल से बना हुआ है. CJZ उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन पायरन डिसीज कहा जाता है. Contributors to microbiology. Many scientists contributed to the science of microbiology from 17th century to present day. Some prominent microbiology you have to the study of microorganism are given below. तो 17th century से जब से माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से 17th सेंचुरी से लेके आपके प्रेजेंट डे तक माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी सारे रिसर्चें चले. बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध किया. एंड Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek of Holland developed microscopy. He was a Dutch merchant and a skilled lens maker. तो Anthony van Leeuwenhoek जो थे वो एक माइक्रोस्कोप को डेवलप किया उन्होंने. एक वो डच मर्चेंट थे और वो एक स्किल लेंस मेकर, लेंस को तैयार करते थे. ही मेड अ वैरायटी ऑफ लेंसेज विद मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 50 to 300 है. तो उन्होंने बहुत सारे लेंसेज बनाए मैग्नीफाइंग पावर 50 से 300x तक. He was the first person to invent a simple microscope. It has a single bioconvex lens with a magnification of 200x. तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्होंने इन्वेंट किया
तो उन्होंने सबसे पहले बायो कॉन्वेक्स लेंस से मैग्निफिकेशन किया, 200x जितना मैग्निफिकेशन करके माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, जैसे कि 1 माइक्रोन, मतलब बहुत ही सूक्ष्म चीजों को उन्होंने देखा। सबसे पहले उन्होंने क्या क्या देखा था, वाटर को, मड को, सलाइवा को, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ही कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सबसे बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने कहा था एनिमैलोक्यूल्स, मतलब लिटिल एनिमल्स कहा था। तो बैक्टीरिया लाइक कोकाई, बैसिली एंड स्पाइरोकीट्स वर रिकॉग्नाइज। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया को कोका और बैसिली की तरह सेपरेट किया, स्पाइरोकीट, ये सब रिकॉग्नाइज किया गया। He proposed the size of bacteria is 1/6 the diameter of red blood cell। तो बैक्टीरिया को क्या कहा था उन्होंने, रेड ब्लड सेल, जैसे कि हमारी आरबीसी के 1/6 के साइज में था बैक्टीरिया। He observed the growth of bacteria in infusion, the existence of spermatozoa and RBC was revealed by him. Animal histology was established by him। तो उन्होंने बैक्टीरिया ग्रोथ के बारे में भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध की। उनके उसके बाद उन्होंने एनिमल हिस्टोलॉजी भी एस्टैब्लिश किया। He described capillary circulation and added a new dimension to biology। कैपिलरी सर्कुलेशन के बारे में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और all kinds of unicellular organisms were actually described by him, including human oral microbial flora, and he is commonly known as father of microbiology। तो उन्होंने बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। और उन्होंने ह्यूमन फ्लोरा, ह्यूमन का जो ओरल होता है, जैसे कि हमारे टीथ के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। इसीलिए इसी के कारण उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पास्चर वाज अ फ्रेंच केमिस्ट एंड ए क्रिस्टलोग्राफर। तो लुइस पास्चर जो थे वो एक फ्रेंच के केमिस्ट थे और वो एक क्रिस्टलोग्राफर थे। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू माइक्रोबायोलॉजी मेड हिम टू बी फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो उनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो हम एंटन लीवेनहुक को कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी तो लुइस पास्चर को कहते हैं। Anton Leeuwenhoek. And Antony van Leeuwenhoek wrote many letters. He wrote them in Dutch, the only language that he knew. These letters described his complete scientific output. तो एंटन लीवनहुक जो थे बहुत सारे वो लेटर्स, मतलब पत्र लिखते थे, वो डच में लिखा करते थे। He described his complete scientific output. Antony van Leeuwenhoek in letter dated 12 June 1716 wrote, my work which I have done for a long time was not pursued in order to gain the praise। तो वो इन्होंने 12 जून 1716 में ये लिखा था कि जो भी वो वर्क किए थे उसके लिए मुझे कुछ प्रेस या मुझे उसकी कुछ तारीफ या फिर उसकी कुछ पैसे नहीं चाहिए। आई नेवर एंजॉय बट चीफली फ्रॉम कार्विंग आफ्टर नॉलेज। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतना सब मुझे मेहनत करने के बाद मुझे इतना सारा नॉलेज मिल रहा है। विच आई नोटिस रिसाइड्स इन मी मोर देन इन मोस्ट अदर मैन। तो मैं अपने आप को नोटिस, मतलब मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। And there with all, whenever I found out anything remarkable, I have thought it my duty to put down my discovery on paper। तो मैंने अभी तक जितने भी कुछ ऐसे डिस्कवरी, मतलब अनजाने चीज़ों को देखा है, उसको मैंने देखा है, समझा है, उसको मैंने पूरा एक पेपर पे लिखा है। सो दैट ऑल इंजीनियस पीपल माइट बी इन्फॉर्म देयर ऑफ। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान सकें। Contribution to science as a chemist. Louis Pasteur was working with tartaric acid crystals. He could pick up the dextro and levo rotatory crystals by seeing the morphology of the crystal. Later, he was called to solve some of the problems in fermentation industry and turned his attention to biological process of fermentation। तो लुइस पास्टर क्या कर रहे थे, टार्टरिक एसिड क्रिस्टल्स में कुछ वर्क कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, डेक्स्ट्रो और तो जब ही कुड पिक अप द डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटेड क्रिस्टल्स बाय सीइंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रिस्टल। तो उन्होंने डेक्स्ट्रो और लीवो क्रिस्टल को ले लिया था क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही थी, मतलब क्रिस्टल बदलने लगा। लेटर ही वाज कॉल्ड टू सॉल्व सम। तो इसीलिए उन्होंने फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में उन्हें बुलाया गया था कि ताकि वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके।
फर्मेंटेशन की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लीवेनहुक्स की माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले यहाँ पे उनका लेंस है, यहाँ पे यहाँ पे सैंपल रखा जाता है, और ये है माउंटिंग पिन, और नीचे में है हमें फोकसिंग फोकसिंग स्क्रू है हमारे पास फोकसिंग स्क्रू है। और यहाँ से ऑब्जर्वर जो भी देखता है यहाँ से देखेगा, और यहाँ पे हमारे हमारे पास लेंस है, ये माउंटिंग पिन है, यहाँ पे हम सैंपल रखते हैं, और ये जो है स्क्रूज है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से करते हैं। ओके, अब लीवन हुक की अब हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन टू माइक्रोबायोलॉजी टू वाइन इंडस्ट्री। लुइस पास्चर discovered alcohol production from grape juice was due to yeast. The presence or contamination of rod-shaped bacteria resulted in a large amount of lactic acid production in wine. तो लुइस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था कि जब हम जो ग्रेप जूस होता है उसे हम अल्कोहल के लिए छोड़ते हैं, उसमें यीस्ट के कारण हमें अल्कोहल बनता है। तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है, जो प्रोड्यूस वाइन के लिए प्रोडक्शन करने वाइन प्रोड्यूस के होने के लिए लैक्टिक एसिड की आवश्यकता होती है। ही ऑल्सो फाउंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फर्मेंटेड फ्रूट्स एंड ग्रेन्स रिजल्ट इन अल्कोहल प्रोडक्शन। तो जो भी फर्मेंटेड मतलब फर्मेंट किए हुए फ्रूट और ग्रेन्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। कॉइन्ड द टर्म फर्मेंटेशन। तो लुइस पास्चर जो थे वही उन्होंने सबसे पहले एक टर्म को यूज किया था, फर्मेंटेशन। पास्चर disproved spontaneous generation. The spontaneous generation state that life could arise spontaneously from inanimate non-living materials, abiogenesis. पास्चर डिसअप्रूव। तो जो लुइस पास्चर थे वो ये कहते थे कि लाइफ लाइफ अराइज हो सकती है, जैसे कि नॉन लिविंग मटेरियल्स में भी लाइफ जी सकते थे। पास्चर डिसअप्रूव्ड दैट द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। तो पास्चर की ये थियरी थी स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म। तो उन्होंने बायोजेनेसिस का मतलब ये कहा था कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म। लाइफ किस तरह ओरिजिनेट हो रही है, एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से। टू प्रूव दैट ही कैरीड आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। Pasteur poured a meat infusion into the flask and then drew the top of each flask into a long curved neck that would admit air but not dust. तो पास्टर ने क्या किया, एक मीट को लिया या एक मटन को लिया और उसको एक फ्लास्क में डाला था। उस फ्लास्क के अंदर एक कर्व नेक के अंदर रखा गया, और उसके अंदर हवा को जाने दिया पर डस्ट को जाने नहीं दिया। He found that if the infusions were heated they remain sterile, free from any growth. तो वो जो भी फ्लास्क था उसको गर्म किया तो उसको उन्होंने अच्छी तरह से एग्जामिन किया था कि उसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं था। तो उस चीज़ को उन्होंने स्टेराइल कहा। स्टेराइल का मतलब ये कि उसमें कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं, until they were exposed to dust. जब वो डस्ट को एक्सपोज हुआ धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने लगा। He demonstrated the growth of microorganism in all the flasks. The unopened flasks were sterile. Thus he disapproved that the theory of spontaneous generation. Pasteurization. Louis Pasteur used heat to destroy undesirable microbes in fruit juices. तो लुइस पास्टर ने क्या किया, हीट से मतलब गर्मी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट जूसेस से। ही एम्प्लॉय 62.8 C for 30 minutes to kill microbes. तो 62 पॉइंट डिग्री सेल्सियस और 145 फॉरेनहीट 30 मिनट्स रखा गया, ताकि 30 मिनट रखा गया था ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जा सके। दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड पास्चराइजेशन विच इज कॉमनली यूज्ड इन डिस्टिलरीज एंड डेयरी इंडस्ट्री। ये पास्चराइजेशन अभी हम लोग डेयरी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ डिसीज। लुइस पास्चर फाउंड द पेब्राइन डिसीज इन सिल्कवर्म वाज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन पैरासाइट। तो लुइस पास्चर जो थे उन्होंने पेब्राइन डिजीज
सिल्क वॉर्म में देखा था और उसे प्रोटोजोवन पैरासाइट कहा था. He suggested that pebrine disease could be eliminated by using only